Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about multiplication of matrices. Now every two matrices cannot be multiplied with each other. There is a specific criteria for multiplication, and that is two matrices A and B are conformable for multiplication AB. They can be multiplied if number of columns in A is equal to number of rows in B. अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता. Now we are going to discuss an example. Let A and B be two matrices. In fact, A and B are both square matrices. A square matrix is basically a matrix in which number of rows and columns are equal. Matrix A is of order 2 by 2. B is also of order 2 by 2. We want to multiply these two matrices. Now first we need to apply the criteria, and you know the criteria is number of columns in A, you can see it is 2, and similarly number of rows in B is also 2. As they are equal, so we can multiply them. Now we start multiplication, writing matrices A and B, and they are on the right side. Now the process is we select first row and we will multiply with the both columns one by one. 2 into 1 plus 3 into 3. This is one element of the resulting matrix. Next, we have to multiply the same row with second column. First element with the first. So we have 2 into 7 plus 3 into minus 2. Now the multiplication of first row with both columns is completed. Next, there is a turn of second row. Second row we are same in a similar way. We will multiply this second row with both the columns of second matrix one by one. Now this second row we are to multiply with first column. Minus 2 into 1 plus 5 into 3. Then the same row we are to multiply with the second column. So we have minus 2 into 7 plus 5 into minus 2. Now after multiplication we have 2 1 the 2 plus 3 3 the 9. 2 into 7 14 minus 6. And here second row minus 2 plus 15 minus 14 minus 10. And by simplifying we have 2 plus 9 11, 14 minus 6 8, and here minus 2 plus 15, answer is 13, and minus 24. So this is called multiplication of matrices. Now the next topic we discuss today is inverse of a matrix. Now अगर आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इन्वर्स हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता, उसका भी प्रॉपर एक क्राइटेरिया है. ओनली स्केयर मैट्रिसेस कैन हैव इन्वर्सेस इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर. मतलब कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता. पहली बात, मैट्रिक्स का स्केयर होना ज़रूरी है. अभी हम स्केयर मैट्रिक्स की बात भी करेंगे, और स्केयर होने के साथ साथ उसका नॉन सिंगुलर होना भी ज़रूरी है. ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है, स्केयर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर. स्केयर मैट्रिक्स होता है, स्केयर, हियर वी हैव डेफिनेशन ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ स्केयर मैट्रिक्स. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो उसको हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं.
For example, here we have a matrix A with elements 2, 5, 3, 2. Now its order is 2 cross 2. 2 cross 2 mean 2 rows and 2 columns. As they are equal, so this is a square matrix. And singular, so later on we discuss about singular and non-singular. Now we are discussing an example in which we will try to calculate the inverse of this matrix A. This matrix A is consisting of the elements 2, 5, 3, 2 and find its inverse. We have to calculate its inverse. इन्वर्स की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. ए इन्वर्स, ए के ऊपर ये जो -1 लिखा हुआ है हम इसे बोलते हैं ए इन्वर्स. ये बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मतलब ये दो चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे. ये ए के जो इधर लाइनें दो लगी हुई हैं इसको हम मॉड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोलते हैं. और ये बहुत सिंपल है. देखिए ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें दो डायगोनल्स हैं. एक ये 2, 2 है, ये फर्स्ट डायगोनल है, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल. एंड द 5, 3 दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल. तो डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल है. फर्स्ट वी नीड टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल. एंड यू कैन सी इन द प्रिंसिपल डायगोनल वी हैव 2 and 2. तो प्रोडक्ट ऑफ 2 and 2 माइनस product of the elements in the secondary diagonal, 3 into 5. The answer is 4 minus 15, that is minus 11. So this is determinant of A. अब यहाँ हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात भी करेंगे. जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है. वो ज़ीरो भी आ सकता है और वो नॉन ज़ीरो भी आ सकता है. देखें, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर. उसे हम कहते हैं सिंगुलर. और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, ज़ीरो ना होने का मतलब है इट माइट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं. अगर नेगेटिव है तब भी ये नॉन सिंगुलर है और पॉजिटिव है तब भी ये नॉन सिंगुलर है. और नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है. अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए और उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो वो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा, आप उसको आगे लेकर नहीं चलेंगे. क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो का मतलब है इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा. अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की. 2/2 का जो आर्डर का मैट्रिक्स है उसमें एडजॉइंट बहुत सिंपल होता है. सिर्फ आपने दो काम करने हैं, बहुत अहम. पहला काम, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करना है. क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे की जगह पर आ जाएगा, दूसरा पहले की जगह पर आ जाएगा. अब यहाँ पर चूँकि दोनों एलिमेंट 2, 2 हैं, अगर हम इनको चेंज भी करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आ गए, इनको आपने इंटरचेंज कर दिया. एक काम ये करना है. दूसरी चीज़, जो दूसरा काम आपने करना है वो क्या करना है कि सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के सिंबल चेंज कर देने हैं. अब देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं, 5 और 3, तो इनके सिंबल चेंज करेंगे, -5 -3. तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका. बहुत सिंपल है 2/2 के अंदर. सिर्फ दो काम हमने किए हैं. प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेसेस इंटरचेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के सिंबल चेंज करने हैं. ये एडजॉइंट आ गया. अब जो दो चीज़ें हमें चाहिए वो दोनों आ गई है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया. सो ए इनवर्स की डेफिनेशन वंस अगेन, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इन द डिनोमिनेटर, सो वी राइट -11, 1 over -11, एंड दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो -11 चूँकि इसको डिवाइड कर रहा है, -11 से हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे. ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन उनके सिंबल भी चेंज हो जाएंगे. फर्स्ट एलिमेंट विल बी -2/11, 5/11, 3/11, -2/11. सो दिस इज़ इनवर्स ऑफ 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स. उम्मीद है आपको ये बात, दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा. तो इसकी कुछ आप ख़ुद प्रैक्टिस करें. अल्लाह हाफ़िज़.